I would like Dr. Garg to start with the session. Good morning, everyone. Can we Good morning, everyone. सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट. Give a round of applause to the artist. क्या कंजूसी मत कीजिए तालियों में. Cheer him on. सदा सवित्रमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट. केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत शङ्खचक्र. पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. त्रैलोक्यपूजित श्रीमान् सदा विजय वर्धन शान्ति कुरु गदापाणि नारायण नमोस्तुते. त्रैलोक्यपूजित श्रीमान् सदा विजय वर्धन शान्ति कुरु गदापाणि नारायण नमोस्तुते. सवित्रमण्डलं मध्यवर्ती नारायण सरसिजासनं सन्निविष्ट. केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत शङ्खचक्र. सवित्रमण्डलं मध्यवर्ती नारायण सरसिजासनं सन्निविष्ट. केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृत शङ्खचक्र.
कदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि তুমি অনন্ত ক্ষয় হে জগন্নাথ তুমি অব্যক্ত অক্ষর হে জগন্নাথ নিজ ইচ্ছারু সৃজিল এ জগত আদি নাহি যে তুমর নাহি অন্ত তুমি পবিত্র ওঙ্কার চির সত্য নীল সিন্ধু তীরে নীলাচল তহি বিরাজিত বড় দেউল তরু ব্রহ্মরূপে হে বিশ্ব পালন উড়াও পতাকা পতিত পাবন সত্য ধর্ম ন্যায় পরিসংস্থাপিত ভক্তর তুমে হইছ হে নাথ শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ শ্রী জগন্নাথ শ্রী Such a beautiful piece created by you. It's a very, very beautiful actually. Let's have a huge round of applause for him. I would like to hand the stage to Dr. Garg. Good morning. I think that was a beautiful start. And being in Puri Literature Festival and starting with Jagannath is the essence. Jai Jagannath. Good morning, everyone. It is a great pleasure to be a part of this Puri Literature Festival and sharing this stage, the dais, with the distinguished panelists. These people sitting here are true examples of passion turned into purpose. They are the people who can actually give us some life lessons about how one can change passion into purpose. We'll not only talk about their achievements, but also about that self-doubt, that journey, that inner journey, those hidden stories that led them to where they are today. A huge round of applause for the people sitting on the dais. Starting with my first question, as Jeetu ji is just beside me. So, Jeetu ji, as we heard her introduction about you, where she told us about you are a gold medalist, was a studious student, how this change to sports and what brought this change? What was that one bit, that changed your focus from education
to sports, and you have made India proud. Yeah. Thank you so much for this opportunity. I'm really grateful. And talking about disability discourse is true in true sense. I really appreciate the organizer and the people who invited me here. I'm really grateful. Thank you so much. Talking about the trigger point. सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट होता है. मेरी लाइफ में भी एक ट्रिगर पॉइंट आया था जहाँ मैंने अपने पैशन को मुझे अपना पैशन मिला. पैशन टू पर्पज. स्पोर्ट्स मेरा कभी पैशन नहीं था. आई वॉज वेरी स्टूडियस, वेरी स्कॉलर टाइप पर्सन. एंड ड्यूरिंग माई मास्टर्स टाइम I was so focused on the study that I forget that I have to be mobile. I have to do the mobility exercise to strengthen my muscles and focus on my health. But although I got the gold medal during my masters, but that medals gave me wheelchair. I was on wheelchair for 2 years, and then when I came to JNU and I consulted doctor there at the AIM, they asked me to do physiotherapy. And during my physiotherapy sessions, I developed the love for the sports. And that's how, and after that I started practicing sport as a profession. And then I represent myself in state, national and international level. And that's how sports changed my life forever. And I think in 21st century, sports can contribute to your health. Health is the biggest luxury one can have and own it. Like now we are dealing with so many non-communicable diseases like heart disease, diabetes and other thing. And sports can be the one of the contributor to the physical activity, and we can achieve fitness. India's Modi's vision of Fit India movement, and sports can be one contributor. And health is luxury. We should invest in health and fitness. Thank you. Thank you so much. Very, very highlighted point where health should be the prime focus of every individual. We today focus on our outer journeys but not inner journeys. Coming to Shehzad ji, you have been an activist, then into politics, and how you have emphasized that the youth is the real change maker. And what is your advice to the youth who want to be a part of politics, but it looks like a big dream and something that is unachievable? What can we do at a ground level who is not a part of the politics, wants to serve India, but how is the question in his mind? सबसे पहले एक बार जोर से बोलिए जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु भवो में. तुम्हें. मंच पे विराजमान हमारे उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री के महानायक सब्यसाची जी, हमारे देश के गौरव जो खेल के मैदान पर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वैसे सुधा सिंह जी और हमारी बहन जीतू जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नमित सक्सेना जी, जिनके विशेष आग्रह पर मैं यहाँ पर आया. और एक प्रकार से देखें तो पूरी लिटफेस्ट में इस मंच पर आप देखेंगे कि नेता भी है, अभिनेता भी है, हैं, लीगल फील्ड के भी है, प्लेइंग फील्ड के भी है, कला भी है, कलम भी है और कानून भी है. तो जैसे उड़ीसा में और कोणार्क में आपको विज्ञान और विरासत का समागम एक महाकुंभ दिखता है, वैसे पूरी के इस मंच पर भी, पूरी लिटरेरी फेस्ट के मंच पर भी कला, कानून, कलम और खिलाड़ी का भी यहाँ पर महाकुंभ है. और नेता तो वैसे अपनी कभी जगह छोड़ते नहीं है, तो नेता तो हमेशा रहते हैं. पता चल रहा है. पर देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सवाल पे उससे पहले ये वाकई सहयोग की बात है कि जितने बार मैं पिछले 3 वर्षों में पुणे, अपने होम शहर,
जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वहाँ नहीं गया, उससे ज़्यादा मैं पूरी आया हूँ पिछले 1 महीने में। तो मैं मजाक मजाक में कह रहा था कि आपने एक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को अपना सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है, पूरी वालों ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है, मुझे भी एमपी बना दो, मेंबर ऑफ परिवार बना दो। देखिए, आज का जो विषय है पैशन टू पर्पस, अब हमारी बहन ने भी अपनी बात रखी और उसी को जोड़ते हुए मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ। पैशन टू पर्पस, ये बात अच्छी है कि इसका टॉपिक का नाम पैशन टू पर्पस रखा गया, क्योंकि कई बार हम लोग पैशन और पर्पस को कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार लोगों को लगता है पैशन इज पर्पस। एक्चुअली पैशन इज नॉट पर्पस। पैशन स्टार्टिंग पॉइंट है, पर्पस एंड है। पैशन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट मेक्स यू पैशनेट, किस लिए आपको एक मन में कसक आती है। पर्पस आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई, आपको क्यों करना है। पैशन आपके लिए इमोशन है, पर्पस आपका मिशन है। पैशन में आप सेल्फ की सोचते हैं कि मुझे उससे ये हासिल होगा, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, उसमें मुझे प्लेजर आ रहा है। पर्पस थॉट ऑफ सेल्फलेसनेस के साथ कि मैं इससे क्या दे पाऊंगा। पैशन काम है, पर्पस धर्म है। तो ये पैशन टू पर्पस होता है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि पैशन तो होना जरूरी है। पैशन वो चिंगारी है, परंतु पर्पस वो लौ है जो लगातार जलती रहती है और पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। वो पर्पस, वो लौ है। तो पैशन से शुरुआत तो हो सकती है, पर जब पैशन में मिशन, डिसिप्लिन और डिवोशन आता है, तब वो पर्पस बनता है। तो पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको पैशन में मिशन, डिवोशन और एक प्रकार से डिसिप्लिन डालना बहुत जरूरी है। जैसे इनका पैशन रहा होगा कि ये खेल खेले, कोई परस्यू करे स्पोर्ट। मेरा भी पैशन था, मैं भी स्पोर्ट्स में पैशनेट हूं, पर पर्पस तक लाने के लिए, भारत के मान को और भारत के तिरंगे को ऊंचा लहराने के लिए जो पर्पस है, उसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके, एक करके देश के मान को बढ़ाने के लिए जो सैक्रिफाइस किया, तभी जो जाकर इनका पैशन पर्पस में तब्दील हुआ। हमारी भी पैशन होती है कि हम बोलें, अच्छा बोले, स्पोक्स पर्सन के रूप में बोले, पर पर्पस कुछ और होना चाहिए। और पर्पस होना चाहिए विकसित भारत 2047। और इसी लक्ष्य को लेकर अगर आप देखेंगे पिछले 10-11 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। पैशन सबका होता है, पैशन होता है कोई पॉलिटिक्स में आए, कोई वकालत में आए, कोई पब्लिक स्पेस में आए, कोई जर्नलिज्म में आए, सबका कोई ना कोई पैशन होता है। हो सकता है टीवी पे बोलना किसी का पैशन हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग किसी का पैशन हो सकता है, पर सिर्फ पैशन लेकर नहीं आना है, पर्पस के साथ आना है। और वो पर्पस है कि आज से 20-25 वर्षों बाद आप भारत को कहां देखना चाहते हैं। और अगर आप पिछले 10 साल की यात्रा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इसकी थोड़ी सी अनुभूति होगी। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में भारत चाहे आर्थिक पटल पर 10वें से 5वें स्थान पर आया, चाहे कूटनीतिक पटल पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो है स्थिति विदेश नीति में आज ज़्यादा मजबूत हुई है, चाहे अगर आप देखेंगे कि कैसे गरीबी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से हमने बाहर निकालने का काम किया है, किस प्रकार से हमने 11 करोड़ लोगों तक टॉयलेट, 12 करोड़ लोगों तक नल से जल, 50 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत का हेल्थ कवर, 50 करोड़ लोगों तक हमने बैंक अकाउंट खोला, और लाखों लोगों तक बिना कोई भ्रष्टाचार के 35 लाख करोड़ का सोशल वेलफेयर उनके खाते में डिपॉजिट हुआ है, बिना 1 रुपए के भ्रष्टाचार के। तो आज इससे भारत की जो यात्रा है पिछले 10 वर्षों में, आप देख सकते हैं कि एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ चुके हैं। और यही हमारा पर्पस है कि अगले 20-25 वर्षों में भारत को सबसे अग्रणी क्षेत्र में हम जाकर खड़ा करें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कूटनीतिक रूप से हो। तो मुझे लगता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो 2 चीज़ें मन में रख कर आइए, और वो 2 चीज़ें हैं गीता और राम।
अब आप बोलेंगे गीता और राम, तो गीता और राम का मतलब ये है, गीता का मतलब बनता है जी फॉर कि मैं इस देश की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, आई फॉर मैं इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको बढ़ाने के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ, टी फॉर टेक्नोलॉजी, मैं इस देश की टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स और किस प्रकार से हमारा 5G और 6G इंटरनेट नेटवर्क पूरे देश में फैला है, तो कैसे हम आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे कोविन ऐप हो चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, इसको अपनाते हैं। या ए फॉर आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम लोग, इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि जहां पर हम डिफेंस के गुड्स इंपोर्ट किया करते थे, आज 23,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो टॉय इंडस्ट्री हमारी डिपेंडेंट रहती थी चाइना पर, आज हमारा 70% जो है टॉयज़ एक्सपोर्ट हो रहा है। आज हम 2 कोविड वैक्सीन खुद बना चुके हैं, और जब देश के पास कोविड वैक्सीन्स नहीं थे तो 100 से अधिक देशों को हमने अपनी 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन पूरे दुनिया में हमने मुफ्त में लोगों तक पहुंचाई, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का काम किया था। तो ये तो हो गया गीता। और दूसरा है राम। राम का मतलब है कि र से राष्ट्रीय सुरक्षा, ए से आर्थिक सुरक्षा, और एम से जो हमारी मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार, इसको और मेरी विरासत को भी ले जाना आगे, ये बहुत अनिवार्य है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो पैशनेट तो होंगे, पर पैशन को इस गीता और राम वाले पर्पस के साथ जब जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, जैसे ओडिशा के लोगों ने भी हम पर अभी कुछ दिन पहले ही आशीर्वाद बरसाने का काम किया है, देश की जनता भी आप पे आशीर्वाद बनाए रखेगी। तो गीता और राम का नाम लेते रहो और पॉलिटिक्स में पर्पस को साधते रहो। जय हिंद, जय भारत। Very beautifully said कि passion with a purpose is the foundation for a legacy. When you put your passion into your deeds, it becomes your purpose and you can lead to wherever you want. Next we have Sabyasachi ji, who was a student of engineering, got into NIC, worked there, and then chose to be an actor out of his passion. And he not only used, we spoke about social media, Azad ji told about social media, how important it is, but he used this platform not for just likes, follows and validation, but for a purpose, for a better India, for a better Odisha, creating that awareness that he could have just confined to his own validation. What was your journey, Sabyasachi? Thank you. Prathame samastinku Jai Jagannath. A very warm welcome to all of you to the land of the Lord of the universe. And see what a beautiful gathering, and I feel so privileged that I am sharing the stage with the national icons. I seriously feel very blessed, and what a beautiful topic we are discussing today. और जब पूनावाला जी बोल रहे थे, मन कर रहा था कि उनको बस सुने, उनका ये जो चल रहा है वो बंद ना हो. So nice. पूरी वाला बन जाऊंगा मैं. नहीं, वो अब मैं बनने नहीं दूंगा, क्योंकि आप पूना वाला हैं और मैं पूरी वाले पुष्करा हूँ. तो आज ये बहुत सुंदर एक माहौल है. एंड कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है और मेरे लाइफ में ये पैशन हो या पर्पस हो इतना वैल्यू रखता है. तो मैं एक लाइटर नोट से स्टार्ट करूँगा. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्लीपिंग. लेट सोना, लेट उठना, that is something which I love. But today's purpose was attending this beautiful gathering. So I had to compromise with my passion for a bigger purpose. So ये जो purpose और passion, इसका जो अंक है ना, ये जो calculation है, इसका सही जो एक बैलेंस एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है. और मेरे हिसाब से लाइफ विदाउट ए पर्पस इज मीनिंगलेस, एंड लाइफ विथ वन पर्पस इज अगेन मीनिंगलेस. यू शुड हैव मल्टीपल पर्पस जो आपके
आपको सोने ना दे। एक पर्पस हुआ हो या नहीं हुआ हो, दूसरा पर्पस आपके सामने खड़ा हो। तो वैसे एक पैशनेट लाइफ और उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपका अगर पैशन आपके साथ है और इतने फ्लेक्सिबल आप अपने पैशन के साथ हो कि एक नया चीज़ भी आ जाए तो भी आप उसके पीछे भागो, दैट मेक्स ए लाइफ मीनिंगफुल। और जैसे आई स्टार्टेड बिकॉज माई फादर वॉज ए IAS ऑफिसर, तो ही ऑलवेज वांटेड कि बेटा गवर्नमेंट जॉब में रहे, एक सेफ सैलरी उसके पास हो। सो ही ऑलवेज वांटेड मी टू स्टडी स्टडी एंड स्टडी। और मेरा मन में तो कहीं ना कहीं था कि एक्टिंग एक्टिंग और एक्टिंग। तो वो स्ट्रगल में आई हैड टू फर्स्ट कन्विंस माई पेरेंट्स दैट दिस इज ऑल्सो समथिंग विच कैन मेक मी अर्न माई ब्रेड, और एक नेम फेम भी मुझे मिल सकता है। एंड द डे ही गॉट कन्विंस्ड, ही बिकेम माई रियल स्ट्रेंथ एंड हिज ब्लेसिंग्स। मेरे मम्मी, मेरे पापा, उनके ब्लेसिंग से मैं आज जहाँ पे हूँ बस वहाँ पे हूँ। लेकिन वही जो पर्पस को ढूंढना, ये आदत मुझे कभी मैंने बैठने नहीं देता। आई बिकेम ए सक्सेसफुल एक्टर फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट मूवी पागल प्रेमी, जो रिलीज हुआ था 2007 में। आई वॉज इन माई कॉलेज दैट टाइम। तो बहुत एक बड़ा सक्सेस मिला, लोगों का प्यार मिला, everyone started recognizing, everyone started taking selfies, taking autographs. That was a blessed life, beautiful life. एक इंसिडेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। जब वैसे 2-4 फिल्म हो गया था, बहुत पॉपुलर था, एक दिन मैं एक हॉस्पिटल में गया था, एक डायरेक्टर जो एडमिट थे वहाँ पे, उनको मीट करने के लिए। ही वॉज देयर इन ए इमरजेंसी वार्ड। तो इमरजेंसी वार्ड आप जानते हैं कि एक बेड से दूसरा बेड आसपास होता है और साथ एक छोटा सा कॉटन उसको डिवाइड करता है 2 बेड को। तो मैं एक चैम्बर में बैठा था, एक बेड के पास बैठा था। जो साइड का जो बेड था, वहाँ पे कोई ट्रोमा केयर का शायद कोई पेशेंट जो कि एक इमीडिएट एक्सीडेंट से वो शायद वहाँ हॉस्पिटल में अभी आके एडमिट हो रहा था। तो ही वॉज इन कंप्लीट पेन, ही वॉज साउटिंग कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, कंप्लीटली ही इज इन हिज पेन। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो नज़र था वो इन दैट गैप, वो जो कॉटन था उस गैप में मेरा नज़र उस तरफ जा रहा था। एंड आई वॉज प्रेइंग गॉड, ओ गॉड, मैंने इतना ज़्यादा पेन ना हो। तो सडनली उस टाइम में क्या हुआ, एक आई कांटेक्ट हो गया, बिकॉज इट वॉज विजिबल। तो वो भी मुझे देखा। एंड व्हेन ही नोटिस्ड कि दैट इज सब्यसाची, फॉर सम सेकेंड्स वो अपना पेन जो था, ही रियलाइज कह रहे आई एम वॉचिंग दैट हीरो जो कि टीवी में या फिल्मों में आता है। एंड एक सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया। एंड यू विल नॉट बिलीव, नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग दैट गुज़बम्प। आई गॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ, दैट आई एम सो ब्लेस्ड दैट एक पेन किलर के हिसाब से 1 सेकेंड के लिए ही कहीं उसको मैंने उसके पेन से निकाल के उसको एक उसके फेस में वैसा एक सिचुएशन में भी स्माइल उसके फेस में ला पाया। ये ब्लेसिंग है भगवान का। और तब मैं सोचा कि ये जो लाइफ है, जो मैं पैशनेटली बनाया हूँ टू परस्यू माई पैशन एक्टिंग, उसको मैं खाली ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल मेक यूज़ इन ए पर्पसफुल वे कि इसको सोसाइटी के लिए मैं डेडिकेट करूँ, सोसाइटी के लिए एक स्टैंड लूँ, यूथ के लिए एक ऐसा एक जरिया बनूं जिसमें हम मिलके कुछ बड़ा कर सकें। एंड आई गॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ। एंड बस आगे और भी बहुत सारे पर्पस मिलेंगे। आज इतने लोगों से मुलाकात हुआ, इतने आइकॉन से भी मुलाकात हो रहा है, तो आई सी ईच मीटिंग एज ए न्यू अपॉर्चुनिटी टू गेट न्यू पर्पस इन माई लाइफ। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आज इतना एक सुंदर गैदरिंग में मैं एक पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच सब्यसाची जी। आई थिंक बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया कि पर्पस एक नहीं अनेक हो सकते हैं, और जीवन में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं हमारा पर्पस भी चेंज होता जा सकता है। और मैं अब सुधा जी की तरफ रोशनी डालना चाहूँगी। सुधा जी, आप कॉलेज में पढ़ रही थी जब आपने पहली बार ये दौड़ लगाई थी, और फिर ऐसा आप दौड़ी कि पद्मश्री तक दौड़ गई। ऐसा क्या हुआ पढ़ते पढ़ते कि आपने इसको अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाया और इतने मुकाम पर आप भारत को ले गई, अपने आप को ले गई? कभी सोचा था, कभी चाहा था
या ये कैसे हुआ ये सफ़र? क्योंकि कई बार इंसान नहीं जान पाता कि उसका पर्पस है क्या, मगर कई बार सिचुएशन ऐसे ऐसे आते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो आपके लिए वो जो जर्नी थी वो कैसी रही? मैं सबसे पहले मंचासीन सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं स्पोर्ट्स बहुत लेट में स्टार्ट की थी। जब मैं 10th मेरा एग्ज़ाम उसी समय था, और उसी समय मैं उत्तर प्रदेश रायबरेली से बिलोंग करती हूँ और मेरा विलेज अमेठी है। और जब मैं रायबरेली से, ग्राउंड बहुत दूर था मेरे घर से, लेकिन जो मेरा स्कूल था सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, और वहाँ जो मैडम लोग थे 98 में, मैं काफ़ी लंबा स्पोर्ट्स उसके बाद भी मैंने किया 98 से लेके 2023 तक, और मैं कंटिन्यू नेशनल टीम में ही रही 2006 से लेके 23 तक, और एक भी ऐसा ईयर नहीं था जो मेरा ब्रेक हुआ हो। तो जब मैंने 98 में स्टार्ट किया था तो जस्ट लाइक ऐसे ही स्कूल से जाते थे, ऐसे ही शर्ट और स्कर्ट में जैसे सब लोग पार्टिसिपेट करते थे नंगे पैर जाके, और वहाँ पे जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। हमारा रायबरेली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का छोटा सेंटर भी है, तो जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी मैं उनको बीट कर गई। तो जो वहाँ के कोचेस थे वो लोग मेरे घर आए और बोले कि आपकी बच्ची स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकती है। तो वो लोग घर आए, तो लेकिन मेरे घर में मेरे माता पिता को पता ही नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम मुझे भी नहीं, बस ये था कि वहाँ पे प्राइज़, मैं सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट की थी 1500 5000 मीटर में, और उस समय प्राइज़ में सिर्फ वही हम लोगों को थाली कटोरियाँ यही सब मिलती थी। तो मुझे लगा कितना ज़्यादा लेके घर जाऊँ, तो बस इतना ही सोच था। तो लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने नहीं भेजा, बोला जब 10th हो जाएगा तब हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा हॉस्टल है लखनऊ में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, तो वहाँ पे फिर से ट्रायल था, फिर कोचेस लोग आ गए। तो मैं उन कोचेस लोग को बहुत बहुत, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो वो आए और बोले कि आपकी ट्रायल है, आप लखनऊ तक भेज सकते हैं। तो अब मैं कभी रायबरेली से लखनऊ नहीं गई थी, तो जैसे ही बता रहे ना पैशन टू पर्पस, मेरा सिर्फ उसमें स्पोर्ट्स में आगे क्या कर सकते मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे यही था कि प्राइज़ मिल रहा है, अभी मुझे लखनऊ घूमने जाना है, तो यही सोच थी। तो मैं वहाँ भी गई और वहाँ भी मैंने ट्रायल दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तब एक लगा कि हॉस्टल में एक नई जर्नी स्टार्ट हुई कि स्पोर्ट्स मॉर्निंग में करना है, फिर पढ़ने जाना है, फिर वापस आके। तो मेरा फर्स्ट टाइम 2001 में सिलेक्शन हुआ, और उसी के 6 महीने बाद मैंने जूनियर नेशनल में मेडल दिया। सिमोगा में हुआ था। तो जूनियर नेशनल में मेडल होने से ये आपको नौकरी कहीं ना कहीं रेलवे या पुलिस में कहीं मिल जाएगी। तो उस समय मेरे 2001 से लेके मैंने 2005 तक जूनियर में मेडल दिया। एशियन क्रॉस कंट्री चाइना गई, तब तक कोई नहीं जानता था। फिर मैं सीनियर, जब मेरी नौकरी लग गई मुंबई सेंट्रल रेलवे टिकट कलेक्टर में, टिकट चेकिंग में थी, तो जब मैं मुंबई पहुंची तो वहाँ भी एक था कि किसी को जानती नहीं थी, सबसे टफ मेरा वहीं पे भी था। तो लगा कि घर से तो था ही कि उस समय इतना खाने का, मेरे पापा ITI में जॉब करते थे, हम 3 लोग रहते थे, एक साइकिल रहती थी, बड़ा मतलब टफ। तो वहाँ से फिर मुंबई गई, मुंबई में फिर और ऐसा हुआ कि जब मुंबई में ऐसा है कि आपके पास रहने के लिए नहीं है तो आप बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर धीरे धीरे मैं कभी किसी एक हफ्ते एक के घर में ऐसे रह के, फिर मैंने जब मेरी नौकरी, क्योंकि नौकरी मिलते मिलते भी 6 महीने लग गए ज्वाइनिंग करते हुए, फिर मेरी नौकरी करने के बाद मेरा स्पोर्ट्स मैंने छोड़ दिया था। मुझे था कि नौकरी मिल गई है तो छोड़ देते हैं, लेकिन जब मेरी स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मुझे बोला कि आपको नौकरी किस लिए दी गई, मुझे ऑफिस में बुला के डांटा, मेरी पोस्टिंग CST में था। तो उसके बाद फिर डांट के उसके बाद फिर मैंने वापस ऑल इंडिया रेलवे दिल्ली में हुआ। तो जो नया इवेंट है 3000 मीटर स्टीपल चेस, उसको भी मैंने रेलवे में आने के बाद स्टार्ट किया। उसके बाद मैं कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात है जो भुवनेश्वर प्लेस है, मेरा सबसे पहले रेलवे में मेडल यहीं पे आया था, यहीं से था कि अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। हम लोग का 1 महीने का कैंप था भुवनेश्वर में, तो उसके बाद ओपन नेशनल हुआ तो उसमें मेरा मेडल आया।
तो कंटिन्यू मतलब रहा, लेकिन 2009 से जो 2020 सीनियर में मेडल दिया, 2009 में एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल, नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और एशिया रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था, और 2011 में एशियन चैम्पियनशिप जापान में हुआ था, वहाँ सिल्वर मेडल जीता था। और 2012 में जो मेरे सबसे बड़ा मतलब एक एथलीट का ड्रीम रहता है ओलंपिक्स जाना है, तो मैंने लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट्स किया था। और 2013 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप में अपने पूना में हुआ था और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और 2014 में जो मेरा दूसरा एशियन गेम्स था, मैंने 3 एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट्स किया, मेरे 2 में ही मेडल आए हैं। और दूसरे में मैं माइक्रो सेकंड से 4th हो गई थी। जब मैं माइक्रो सेकंड से 4th हुई तब मुझे पता चला कि एक टाइमिंग सेकंड से भी नहीं, माइक्रो सेकंड से, तो लगा कि 4 साल की मेहनत किया और लास्ट में माइक्रो सेकंड से 4th हो गई, तो ऐसा लगा कि ग्राउंड में बैठे रहे। तो मैं वापस स्पोर्ट्स फिर से छोड़ दिया कि अब ठीक है। मुझे 2012 में अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति जी द्वारा नवाजा गया, और 2013 में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड उत्तर प्रदेश से, और यश भारती अवार्ड, और जो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरा पद्मश्री अवार्ड। तो ये सब मेरा मतलब पहले था कि सपना ही था, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर किसी चीज़ को ठान लें कि मुझे करना है, एक गोल बना लें कि मुझे अगर मैंने स्टेट में मेडल जीता है या आगे मुझे नेशनल में जीतना है, अगर आप उसके पीछे लग जाएं कि मुझे चीज़ करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर सकते। जो भी हमारे युवा एथलीट हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मैं बस उनको हमेशा यही बताती हूँ कि आप अपना गोल बस बनाइए, बाकी तो मेहनत बगैर तो चाहे आप किसी भी चीज़ में आप बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सुधा जी, आप बिल्कुल एक मिसाल हैं कि जहाँ चाहा है वहाँ राह है और सपने सच होते हैं। बहुत बहुत कमाल की रही है आपकी जर्नी। एंड कमिंग टू नमित जी, you chose a field of public policy, law, governance. How did you choose this, and how did you come to the public forums to create that awareness that is required, and why do you feel that the young change makers need to know about their constitutional rights? Thank you so much, Nidhi ji. We have a very esteemed panel on a very blessed land. Jeetu ji, Shehzad ji, Sabyasachi ji, Sudha ji. Jeetu ji shared her life journey, which is very inspirational. शहजाद जी के बारे में फेमस है, शहजाद जी जब बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और जब दिल से बोलते हैं तो और भी मज़ा आता है। जो राष्ट्र निर्माण की बात शहजाद जी ने आज कही रिगार्डिंग व्हाट इज़ द लार्जर पर्पस इन लाइफ, इट इज़ इंस्पिरेशनल इन इटसेल्फ। सब्यसाची जी ऑफ कोर्स, एंड शहजाद जी द पैनल जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी और कलम। That is also very, that's the beauty of having a lit fest. And Sudhaji, of course, very inspirational. So when we see the studies of law or the practice of law, the studies of public policy or governance rather, it is a very composite field. The best lawyers in the country you'll see are avid sportsmen or avid sports person. They are musicians. They are religious devotees. So law is a very composite field when you study, and from both ends. I'll tell you how. How when you have a passion towards a particular thing, and rather multiple passions, because there is, as Sabyasachi ji also pointed out, there is no one singular purpose in life. There may be a singular goal in life, but there are different purposes, short purposes in life. And passions also, as Sudhaji also pointed out, the expression she used is goal. So there can be multiple passions in life. I can be passionate about studies of law. I can be passionate about, animal protection, or I can be passionate about dogs, in particular. So there can be multiple passions. I can be passionate towards, some other, field as well, apart from law. So when we study public policy or when we study law as a subject, it has to be multi-dimensional. It has to be looked from a lens that it is touching different aspects of society
And how Shehzad ji also described passion to purpose very beautifully. Passion is karma, purpose is your dharma. So from karma to dharma, and this is a big dilemma which in my view our younger generations are going through. And I'll give you a very basic example which I went through in the morning today. We went for the darshan in the morning. By the time we reached on the doors of Lord Jagannath, the doors were closed and we were told that these doors will now open only at 10 a.m. And at 10 a.m. my session was scheduled. So it is karma for which I came here. It is my duty because, I have to, serve, I have to make justice to the reason for which I came primarily. And dharma. Dharma is the duty towards your deity as well, the deity whom you worship. So this dilemma in which our younger generations primarily go through, karma or dharma, which is supreme, and this has been a traditional dilemma, which has been described very beautifully as to how do you deal with this, what is the formula to sort of, get over it. It's also very beautiful. So, and that is why, the passion in any field of law, for example, we discussed that the best lawyers of the country are avid sportsmen, avid sportspersons. So they were passionate when they were young, or comparatively younger, about sports, whatever sports they were in. And what does sports primarily teach you? Sports teaches you teamwork. Sports teaches you strength, stamina, which is very important. Whatever, other passions you may have. Sports teach you that you have to have a mind of an ocean and body of steel, so that you can, you can absorb whatever is happening around the country. We see political activists. Shehzad ji, a lot of us may not know Shehzad ji also studied law. And all of us, all four of us today could have, chosen different fields. So the purpose which we have primarily is to work towards Rashtra Nirman. Different. Shehzad ji has chosen the path of political activism. Sabyasachi ji has used his movies, his work there. Sudha ji, Jitu ji, sports to inspire people that this is another platform through which you can do. And they have, brought good name to our country worldwide. So this is again very important. Particularly, one more thing which I want to share is that we have to have a tendency to exit from stereotypes. What primarily happens and what is primarily happening to the younger generations is that they tend to succumb to institutional pressures more. The tendency to, in a sense, break away from barriers or break away from traditional norms which have been told to us ki ji aisa hi hota hai, So, we have to break those barriers and understand how public policy, law, governance, all these aspects are also constantly evolving. So as to understand what is going to happen or probably may happen in the future to prepare ourselves today. Thank you. Thank you so much, Namitji. It's so important to prepare yourself no matter what. How many of you have ever been told that your dream is too big? Anyone who has been told that your dream is too big? So, we all, she says we all. So somewhere I feel the crowd is scared except that one woman who raised her hand that yes, we have been told that your dreams are too big. And if that has been told, then you are just in the right room with this panelist. A big round of applause again for this panelist. Jitu ji, you, as Namit ji mentioned about the stereotypes, Jitu ji, you must have encountered so many stereotypes in your life. How did your personal story break those stereotypes in public or in your personal journey? And what were these stereotypes that came your way? There were so many stereotypes, I would say. But for me, I was always a rebel kid. Nobody can dictate me. What I can do, I know my ability, I know my capability. I can do whatever I want to do. No one should dictate me. That was my attitude. And it's like, you are disabled, you can't do this thing. I am cerebral palsy person. Cerebral palsy, when you are born, there was lack of oxygen in the brain. So your neural system breaks down so much that my whole body is affected. And doctor told me that now see, I don't think she would survive. And I survived. I rocked the stage.
I rocked the journey and I did everything to make myself that I can do it and my parents proud, my society, like they look down to me, and I said no, I am capable enough, I can do. And I think study, when I was doing my study, I think like study is one thing that where I can prove myself to the society that if I want, I can do it. So like I was always been topper in my school and college and master's degree. And when I started sports, like people are like, you can't run. I said, please, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है, मुझे करने दो, जो मैं कर सकती हूँ मुझे बताए. So like we should have that never giving approach. क्या हार तो नहीं मारनी है, मेरा नाम जीत है. So that's all. ब्यूटिफुल, मेरा नाम जीत है. वेरी वेरी ब्यूटिफुली सेड, मेरा नाम जीत है. एंड जीतना मेरा पैशन है. वाओ, जीतना मेरा पैशन. शहजाद जी, आप जीतना इनका पैशन है, भारत को जिताना इनका पर्पस है. वाह वाह. पर मैं आपके सवाल पे आऊँ उससे पहले, एक ही एंटिटी है जिनका पैशन और पर्पस जो है, और पैशन टू पर्पस की जर्नी से हमें सीखना चाहिए. आप में से कितने लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं? हनुमान जी प्रभु राम के तो सबसे बड़े भक्त हैं ही. अभी हनुमान जन्मोत्सव हाल ही में हमने मनाई है. परंतु अगर हमें देखना है कि पैशन टू पर्पस का अगर जीता जागता एग्जाम्पल, तो हनुमान चालीसा में वो मिलता है. आप अगर ओपनिंग दोहे देखेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु. बरनौ रघुबर, ये पता है रघुबर क्यों? वैसे ये हनुमान चालीसा प्रभु श्री राम की डिस्क्रिप्शन नहीं है, हनुमान जी की. बरनौ मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ रघुवर. रघुवर मतलब प्रभु श्री राम. क्योंकि जब स्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा रचने की कोशिश कर रहे थे, तो बार बार वो हनुमान जी की स्तुति में, हनुमान जी की प्रशंसा में लिखते रहे, पर उनको वो प्रकट ही नहीं हो पा रहा था जो उनको लिखना था. और तब उनको फिर ऐसा आभास हुआ कि यदि हनुमान जी के बारे में लिखना है तो उनके जो सबसे ज़्यादा पर्पस है या जिनके लिए वो पैशनेट है, रघुवर, तो उनके नाम से लिखना पड़ेगा. तो तब जाकर बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचा. तो ये हनुमान चालीसा में भी मिलता है कि हनुमान जी की कितनी पर्पस और पैशन दोनों श्री राम थे. विद्यावान गुणी अति चातुर, पर उसके आगे क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर. मतलब विद्यावान भी है, गुणी भी है, अति चातुर है. ये अपने आप में संपन्न करने के लिए बहुत कुछ है, अपने आप में ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है. परंतु क्यों वो कहाँ डायरेक्ट हो रही है? राम काज में. तो प्रभु श्री हनुमान का हर एक जो एक्शन था, हर एक जो उनका चीज करने का था, वो सारी चीजें पर्पस थी टुवर्ड्स प्रभु श्री राम. तो अगर पैशन टू पर्पस अगर सीखना है, प्रभु श्री राम का कोई भी काम हो, उसके लिए पैशनेटली खड़े होना, और उनका पर्पस भी यही था कि प्रभु श्री राम के ही लिए करो. तो मुझे लगता है अगर सीखना है तो उनसे सीखना चाहिए कि ये पैशन टू पर्पस कैसे होना चाहिए. बिल्कुल. और हमारे यहाँ जो यूथ हैं, जो हनुमान हैं, जो पैशन को पर्पस में चेंज करना चाहते हैं, कुछ यूथ इनिशिएटिव्स जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाया हो, एंड ऑल दीज पॉलिसी चेंजेस, हम चाहेंगे कि आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए जो इन सब चीज़ों में यूथ ने इनिशिएटिव लेकर चेंज. मैं आपको बताता हूँ, 3-4 एग्जांपल्स बता देता हूँ. 10, 11, 12 साल पहले कुछ लोगों का पैशन परिवार था, पर्पस भ्रष्टाचार था. पैशन परिवार, पर्पस भ्रष्टाचार. अब समझ गए ना? नेशनल हेराल्ड में पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, ये ऐसे ही पता चल जाएगा. आज हमारा पैशन जन सेवा है और पर्पस है कि भारत के लोगों के लिए किस प्रकार से भारत को आगे ले जाना.
तो परिवार और भ्रष्टाचार अगर आपका पैशन और पर्पस ना हो तो युवाओं के लिए काम होता है। जैसे आज भारत ने जो इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में की है पिछले 10 वर्षों में, चाहे टॉप स्कीम हो चाहे खेलो इंडिया हो, तो पहले हम एकाध कोई मेडल ले आते थे। आज भारत का सबसे अच्छा पैरालंपिक का परफॉर्मेंस हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में दिखाया है, और जितना 70 वर्षों में मेडल नहीं जीते उतना एक टोक्यो पैरालंपिक्स में हम जीत के दिखाए। दूसरा उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से पैशन टू पर्पस का एक, जब डायनेस्टी पैशन ना हो और पर्पस जो है वो भ्रष्टाचार ना हो। हम लोगों के साइंटिस्ट जो है इसरो के, वो अनेकों बार चंद्रयान के मिशन पे लगातार कोशिश करते रहे। जब सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तब भी हमने देखा कि किस प्रकार से एक बार चंद्रयान जब गया था तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, पर उसका टच पॉइंट जब नाम रखने की बारी आई मून पर तो उसका नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। और आज जब चंद्रयान 3 हमने देखा कि साउथ साइड ऑफ द मून पर सक्सेसफुली लैंड हुआ तो उसका नाम कोई दीनदयाल पॉइंट, वाजपेयी पॉइंट नहीं रखा गया, उसका नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट, जो भारत के विज्ञान और विरासत दोनों को दर्शाता है। मतलब कि ब्रह्मांड में भी हमने रिकग्निशन दिया हमारे तिरंगे को और हमारी सनातन संस्कृति को, जो विज्ञान और विरासत को साथ में लेकर चलती है। तीसरा, आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में 2014 से पहले मात्र 300 या 400 स्टार्टअप हुआ करते थे और हार्डली 3 या 4 यूनिकॉर्न थे। आज जब हम 2025 में आए हैं तो 300-400 स्टार्टअप 1 लाख से अधिक स्टार्टअप में तब्दील हो चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टअप तैयार हो रहा है और हमारे देश में आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न, मतलब ऐसे स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है, आज इस देश में तैयार होकर खड़े हैं। तो ये दिखाता है कि जब आपका पैशन और आपका पर्पस एक परिवार से केंद्रित होकर न होकर पूरे देश पर केंद्रित होता है कि पूरे देश की सेवा करनी है, परिवार की सेवा नहीं करनी है, तो निश्चित रूप से पर्पस जो भ्रष्टाचार था, आज वो पर्पस जो है देश को आगे ले जाने का होता है। और उसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम लोगों के देश में पहले जब मैं खुद 15-16 साल का था तो मुझे याद आता है कि इंटरनेट हम लोग कंप्यूटर से एक्सेस करते थे और 10-15 मिनट एक्सेस करने के बाद हमें बोल दिया जाता था कि आप इंटरनेट बंद कर दो, बड़ा बिल आएगा, बहुत ज़्यादा बिल आएगा। आज हम देख सकते हैं कि जो इंटरनेट का कॉस्ट 300 रुपीज़ पर जीबी, 300 रुपीज़ पर जीबी था, आज वो इंटरनेट का कॉस्ट मात्र 9 या 10 रुपए प्रति जीबी है। जो 56 kbps की स्पीड है आज 5 और 6 mbps की स्पीड है। जो हम 15 मिनट इस्तेमाल करते थे कंप्यूटर पर कभी कभार, वो एक लग्जरी थी। आज देश में 5 लाख किलोमीटर ब्रॉडबैंड और नेटवर्क इंटरनेट का फैलाकर आज हर एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है। और आज इसी इंटरनेट के चलते कई लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन से अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ये जो तब्दीली आई है जिसने अनलीश कर दिया है युवाओं की ताकत को, ये भी देखने लायक है कि ये पिछले 10, 12, 15 वर्षों में ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब आपका पैशन और पर्पस दोनों क्लियर हो तो मुझे लगता है नेचुरली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। Absolutely, absolutely. And coming to Sabyasachi, what do you think? What role does regional cinema and culture plays in building a united India and an empathetic India? What role does this regional cinema and what change that we can make in this? How can we make that if we can? Cinema has a beautiful power. It can impact the society, it can reflect the society. और जो पावर सिनेमा में होता है, जब आप 2 घंटा एक फिल्म हॉल में या फिर टीवी के सामने बैठ के फिल्म देखते हैं, यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द सब्जेक्ट, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। और वो जो पावर है, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में था कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिनेमा का है कि सही तरीके से सही चीज़ को सामने
लाया जाए और उसमें सोसाइटी का कुछ ना कुछ मैसेज ओरिएंटेड, कुछ ना कुछ एक इंस्पिरेशनल हो, किसी को कोई लाइफ में मिशन मिल जाए, वैसा सिनेमा होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्पेशली रीजनल सिनेमा दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा. आप सभी जानते होंगे अभी एक उड़ीसा में बहुत बज क्रिएट किया है, एक 10 डेज हुआ है रिलीज़ का, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक वुमेन सेंट्रिक सिनेमा जो कमर्शियली सक्सेसफुल हो रहा है, लोग हॉल आ रहे हैं, टिकट परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ पादे आकाशो, ए लाइफ ऑफ ए लेडी ऑन ए व्हील चेयर. कभी कोई सोचा नहीं होगा उड़ीसा में कि ऐसा एक सब्जेक्ट जो कि ना कोई हीरो है ना कोई कमर्शियल एलिमेंट है, वो फिल्म इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकता है, वो कभी कभी कोई सोचा नहीं था. लेकिन दैट इज़ वर्किंग दिस डेज बिकॉज people want good cinema which can influence their life. Or though that movie belongs to my wife, I will take some share of the credit because that was my purpose. Because I work with Dr. Shruti Mahapatra since last 12 years as a goodwill ambassador to her NGO. And when I came to know about her life, I was so much inspired कि मेरा एक purpose बन गया कि वो life को लेके film बनाया जाए. I tried convincing of it. It took 2 years to convince her. She was not ready to share her life. तो 2 साल वो जो because she loves me a lot, उसको एक मैंने सामने रख के नानी प्लीज राजी ही जाओ, नानी प्लीज राजी ही जाओ, we need to inspire everyone. तो ସେଇ ଯୋଉ passionଟା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ purpose କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନେମାଟାକୁ ଗୋଟେ purpose କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ change ଆଣିବା, that somehow made me successful and that cinema is now inspiring many. So that way cinema can change lives, cinema can influence people. And अभी जो मेरा एक mission है which is now a new purpose, you can say post COVID, because COVID से पहले कहीं ना कहीं हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अपना पर्पस कहीं ना कहीं खो दिया था. We were after remakes, we were after commercial films. तो रिजेक्शन के बाद रिजेक्शंस आते रहे, पब्लिक हमें जताते गए कि वी डोंट वांट टू सी योर मूवीज अनलेस एंड अंटिल यू डू समथिंग ओरिजिनल. देन आई थॉट दैट वी नीड टू चेंज द वे वी आर डीलिंग विथ एंड आई स्टार्टेड टेकिंग, जैसे साहित्य ऐसा एक चीज़ है जो कि सिनेमा को फिर से एक नया लाइफ दे सकता है. एंड लिटरेचर को भी मैंने अपना मुद्दा बनाया एंड आई ब्रॉट पुष्करा. That gave me such successful result and that inspired me कि मुझे और भी वैसा एक कुछ purposeful सिनेमा करना है जो कि connected हो अपने रूट के साथ, अपने लिटरेचर के साथ. and see how blessed I am. I got a call from one of the national award winners जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, सब्यसाची महापात्र जी. He calls me that Sabya, we are going to make a movie on Fakir Mohan Senapati's a very famous story, Randi Puo Ananta, and you need to gain weight for that. See, as I mentioned कि मुझे सोना बहुत पसंद है, वैसे मुझे खाना भी बहुत पसंद है. So when he said कि you need to gain weight, I started eating and I from 70 kilos I became like double figure से triple figure चला गया, 105 kilos I went. And because वो एक ऐसा सिनेमा है जिसमें हमारा कल्चर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारा एक बहुत बड़े दिग्गज राइटर, उनका एक कहानी है, एक क्लासिक है, उसको हम लोग सिनेमा के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाएंगे. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बन गया, जब पर्पस बन गया, तो कहीं ना कहीं दैट विल बिकम ए न्यू आइडेंटिटी. जैसे अभी अर्चिताज आइडेंटिटीज पादे आकाश, वैसे ये जो अनंता आ रहा है जून में हम लोग उसको रिलीज करेंगे. सो आई एम श्योर दैट उड़ीसा का जो यूथ है वो भी एक ऐसा एक मैसेज है कि एवरी इंडिविजुअल इज ए अनंता हु कैन सेव हिज विलेज इफ देयर इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इफ देयर इज ए डिजास्टर, देन यू कैन बिकम अनंता, यू कैन सेव योर विलेज. वैसा एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ वो फिल्म हम ला रहे हैं. तो एवरी रीजनल इंडस्ट्री, एवरी रीजनल फिल्म्स इज नाउ treating that way and they are doing good cinemas to inspire and to reflect their own culture and heritage. बहुत बहुत अच्छी बात कही सब्यसाची जी ने कि सोशल मीडिया ने इनको नकार दिया था और कैसे उसको उनको नकारने के बाद इन्होंने अपना पर्पस चूज़ किया और फिर उभर के आए.
2014 से लेके 23 तक इतना रिजेक्शन हमारा इंडस्ट्री को मिला है, जो कि शायद हमें फिर से बैक इन ट्रैक होने के लिए हमें एक पर्पस दिया था. तो द क्रेडिट गोज टू द पब्लिक. तो मैंने अभी एक नया हॉलीवुड हमारे सामने है, नए नए फिल्म्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स आ रहे हैं. तो आई एम श्योर दैट दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस ए लॉट ऑफ यंग माइंड्स जो उड़िया सिनेमा देख के कुछ सीख सकते हैं, अपने मिट्टी के बारे में जान सकते हैं. आई एम श्योर. थैंक यू सो मच सब्यसाची जी. एंड जो सोशल मीडिया की बात आपने कही सुधा जी, मैं इस पे रोशनी चाहूँगी कि जो आज एथलीट है उसको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है. फिज़िकल प्रेशर तो होता ही है उन पे, बट मेंटल प्रेशर भी एक क्रिएट किया जाता है. और अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको क्विट करने के लिए कहा जाता है. ऐसा कुछ क्या आपने अनुभव किया था? और अगर आपने अनुभव किया है इस चीज़ को, तो उससे आप कैसे उभर के आई? और इस आज के समाज के लिए आज जो इतनी जल्दी एक रुझाव बना लेती है, एक मनोस्थिति बना लेती है अपने मन में, उस यूथ के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले अपने क्योंकि जो भी एथलीट मेहनत करके सभी चाहते हैं कि मैं मेडल लेके आऊँ, कोई नहीं चाहता कि मैं पीछे होके आऊँ, लेकिन नहीं होता है, कभी कभी मेडल नहीं आता. तो मुझे नहीं लगता, जब हम लोग बाहर रहते तो सच में बताएं तो जब इंडिया में बहुत कंपटीशन होते हैं, जैसे एशियन चैम्पियनशिप भुवनेश्वर में हुआ था 2017 में, तो उसमें मैं फिट नहीं थी, तो मुझे बहुत टेंशन था कि अगर मेडल नहीं आएगा तो क्या होगा. और बाहर जाते हैं तो कम टेंशन रहता है. तो मैं सारे जो भी देखते हैं उनको ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि जब मेडल नहीं आता है तो सब बोलते मेडल नहीं आया, लेकिन जो बोलते मेडल नहीं आया वो अपने बच्चों को क्या स्पोर्ट्स में भेजा है. और आप सोचते हैं कि 100 में गए हैं तो 100 मेडल आ जाएं, तो ऐसा नहीं है. सभी लोग चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको आप बढ़ावा दीजिए. मेडल नहीं आया है, जैसे कि हम लोग खेलने जब ओलंपिक्स जा रहे थे, रियो ओलंपिक्स में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको खेलने जाने से पहले भेजा कि आप लोग को अच्छा करना है और मेडल लेके आना है. तो खेलने आने के बाद भी जिसके मेडल नहीं आए हैं उनको भी इतना उन्होंने सम्मान दिया कि जो मेडल वाले भी और जो मेडल नहीं भी आए उनको साथ में बिठा के उनको समझाया है कि आपका अगली बार मेडल आएगा. तो यही हम चाहते हैं अपने देशवासियों से भी कि आप अगर देख रहे कि भाई मेडल नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उनको ये मत, आप सोशल मीडिया पे आज इंडिया जीत गई तो आप जश्न मना रहे हैं और इंडिया हार गई तो आप पूरे दिन आप उसको लेके टेंशन में रहेंगे. तो लेकिन आप टेंशन में हैं तो खुद भी आप स्पोर्ट्स की लाइन में जाइए. और स्पोर्ट्स में मुझे लगता है कि आजकल इतना सबसे मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए बारे में बोलें, क्योंकि सबसे पीछे थे हम लोग, थे कि हमारा प्राइज़ मनी हो गया या जॉब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं 2010 में एशियन गेम्स से मेडल लेके आई थी. लेकिन जब 2018 में दूसरा एशियन गेम्स में मेडल और दूसरा ओलंपिक्स खेल के आई, तब हम लोग को पैसा, क्योंकि हर एथलीट कहाँ, हम लोग 2000 में जब जॉब ज्वाइन की तो 5000 रुपीज़ मिलता था, और आज हमें मेडल जीत के आते हैं तो 3 करोड़ 1.5 करोड़. तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बहुत मतलब पैसा है. तो मुझे लगता है कि आज पैसा भी है, डायरेक्ट आपको डिप्टी एसपी की जॉब और डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर की जॉब मिल रही है. तो मुझे लगता है हम हर सभी माता पिता से बोलेंगे, आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स करना चाहता है आप उसको बिल्कुल भेजिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में नहीं भेजना चाहता. मैं मुंबई से वापस मैं रायबरेली अपना ट्रांसफ़र कराई हूँ, तो वहाँ मैं 2 साल से रह के मैं खुद भी देख रही हूँ कि यही चला. लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे बच्चे, अगर मैं वहाँ तक पद्मश्री तक पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं उन बच्चों को प्रैक्टिस कराऊँ और ओलंपिक तक वो मेडल जीतें. Very good, very good. We should encourage every child who wants to do it at least to enter into the field of sports. Coming to Namit ji, you have seen very closely firsthand that laws can be change makers, you know, law can be a shield and a sword also. So why and how is it important that the young people, the youth, should know about these laws, and how can they use it? That awareness, how can we build that awareness?
So studies of law is extremely important. For example, today, at this point of time, we are able to arrange a platform like this because the Constitution guarantees us the right to freedom, speech and expression. We can say what we want, we can express what we want in what manner we want as well. So constitutional studies are extremely important. And apart from Constitution, there should be, in the curriculum itself, there should be a course on legal studies. For basic laws, for example, if some mishappening happens in a particular family. Basic human rights. Basic, not only human rights. Human rights is a very niche Constitutional. subject. Basic legal rights as to where do you go report a crime? How do you report a crime? In what manner should you report a crime? Where do you do it? How do you keep a copy of the complaint? How do you, basic problems, a partition suit in the family disputes, matrimonial disputes are also, very high nowadays. So basic legal rights which we have guaranteed not only by the Constitution but by other statute books as well. All these things I think should be made part of the school curriculum so that a student going in class 11th or 12th should have, a basic aptitude to study law or to know the law at least which is prevalent in the country. So one, there should be right to legal studies. Second, in all college, for example, all BA programs or all engineering or MBBS programs also, there should be an element of law somewhere. For example, in BTech curriculums, where somebody is studying engineering primarily, there should be a subject where you touch, basics of law. For example, we have a lot of development in the field of AI now. Technology laws are also, intellectual property laws are also very important. Now, for example, IIT Kharagpur has a course, has a 3-year law course now. So a mixed blend of, study should be there. MBBS students, for example, they should be made aware of medical negligence laws. When it is negligence simpliciter, when it can amount to medical negligence, etc. And what are your defenses? How do you become a medical legal expert as well? So I think law is a subject because law touches all dimensions of the society. So law is a subject should be there in all curriculums. And basic legal rights studies should be there in the school itself. So that a school-going child develops an aptitude towards knowing or getting aware about the laws which are prevalent in the country. Thank you so much. And before we close this session, I would want all the esteemed panelists to share one mantra or a mindset or one line from your heart to the youth sitting here to inspire them. One line. Okay. I think for me, I feel that if I can do it, you all can do it, everything. And second thing, I look forward to the Fit India. I want each and every person to take up the sports or fitness and be healthy. Health is a luxury one should have. Thank you. Thank you. Shehzad ji. One mantra that I would like to share is कर्म करो फल की चिंता मत करो. अगर आप अपने पर्पस से डिवोटेड है तो फल की चिंता मत करो. अपने पर्पस के लिए काम लगातार कर्म लगातार करते रहो और मुझे लगता है कि आपका पर्पस जो है वो पूरी तरीके से वो हासिल होगा ही. Should I? Yeah, please, each one of you. The only thing I want to mention is, especially to the youth, be ready passionately because you never know what opportunity or what purpose may knock your door. So always be prepared and be ready for it passionately. मेरा बस एक ही जो यंगस्ट उनके लिए मंत्र है कि आप अपने माता पिता और गुरु का पहले उनका आदर करें और उसके बाद जो आपका गोल है उस पर आप बस सेट रखिए कि मुझे ये काम पूरा करना है. क्योंकि आप बिना संघर्ष सबके जीवन में रहता है, तो आप बिना संघर्ष के आप कोई भी मुकाम अपना पूरा नहीं कर सकते हैं. तो आप अपना मन में करिए कि ये गोल हमें बनाना है, ये चीज़ हमें पूरा करना है, तो आप ज़रूर पूरा करेंगे. ये और सभी यंगस्ट को ऑल द बेस्ट. The mantra which I'll give, and I'll differ with Sabyasachi Di in this: early to bed, early to rise. You sleep early, you get up early in the morning. Why? Because I feel, and this is something which has helped me in life, that when you get up early in the morning, you are ahead of
a good section of the society. If you're getting up early, you start the day early, you end the day early. Sleep on time, have a fixed time in life, get up at the same time daily, sleep at the same time daily. So that you have a pattern. That pattern will control your dietary habits. Dietary habits and control will give you, a mind of an ocean and body of steel. If you practice this when you're young, you won't, regret this in your 60s. Thank you. Legally, you are right. But creative minds get activated after 12 midnight. Passionate. Okay, on behalf of the organizers of Puri Literature Festival and the entire audience, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed panelists, Jeetu Ji, Padma Shri Sudha Singh, Mr. Shehzad Poonawalla, Mr. Sabyasachi Mishra, and Mr. Namit Saxena for sharing their wisdom, stories, and above all, their honesty with us today. Each of you brought not just the expertise, but authenticity and reminded us that the passion without purpose is noise, but with purpose, it becomes a legacy. I also would like to thank the young audience which were present not only intellectually, but also emotionally. Lastly, a special thank you to the organizers for curating the much needed conversation, one that will hopefully spark courage in many hearts long after we leave this room. Let's remember, no dream is too small and no path too unconventional if it is walked with integrity and intention. Thank you, Mr. Om, for giving me this opportunity. A big round of applause to the esteemed panelists. Thank you so much for joining us.